Hello friends. Welcome back again on the Consistency in Silence YouTube channel. So in the previous class, we have covered our chapters of Panchayat as well as PISA. In the previous class only, we have covered one mains question also. So in today's class, we will be covering our next chapter known as municipalities. So without any further ado, let's jump start to today's topic. There's a single article for the panchayats as well as municipalities, that is 243. So this was a subscript A, B, C, D, E, F. So in the previous class we have covered that panchayats article is from 243 to 243O. Now 243 P से Z E तक लेके. So municipalities, some of the basics we have already covered. 74th Constitutional Amendment Act 1992, Part 9A, Schedule 12 covers 18 subjects. One more additional point, I think प्रीलिम्स में आ सकता है ये पॉइंट. एक रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन गठित किया गया था, तो उनके चेयरमैन कौन है? सो हॉबहाउस थे. लिखा हुआ है आपकी लक्ष्मीकांत में, कभी भी आ सकता है प्रीलिम्स में, तो थोड़ा सा याद कर लेना. सबसे पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ बैठी थी? मद्रास में. ये भी याद रखना, बहुत पहले बैठी थी, ईयर याद करने की ज़रूरत नहीं है, मद्रास में बैठी थी, इतना याद रखना. So this was regarding the basic of municipality. Now our constitution has given very important phrase, the three types of the municipalities in the urban area. It is not creating a hierarchy like the panchayats in the urban areas, but it is giving three kinds or three types of the administrative body. The first one is the municipal corporation for administration of bigger areas. What is bigger area? States decide करेंगे. Municipal council for the administration of smaller areas. Who will decide? Discretion of states. And the Nagar Panchayats for the transitional areas. So these are three types of administrative bodies that will work in the urban areas. Either we have the presence of municipal corporation, or we have the presence of municipal council if it is a smaller area, or if it is a transition area, we have the Nagar Panchayats. So it is not a hierarchy. Understood? तो ये बहुत important चीज़ थी यहाँ बतानी. So let us talk about the composition of these municipalities. Most of the 90% of the provisions are in relevance to panchayats. Composition: all members will be elected by the electorals of that particular area. Now regarding this constitution of municipalities, we have something known as wards. So the district will be divided into number of wards. From each of the ward, we have a ward councillor, and here we will see the structure. हम अभी किसकी बात करेंगे? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो यहीं से हम थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं.
Actually, this particular part we have to deal later, but for the connection of these words, I am telling you now. So, the district has been divided into number of wards. From each of the ward, there is a election of ward councillor. The sum of all these ward councillors will constitute the council, which is the legislative or deliberative body of the municipal corporation. So here we have encircled the deliberative body. In the triangle we have the executive wing headed by an IAS, उसको municipal administrator बोल देंगे हम. In this legislative or deliberative body we have the council. Council constitutes of the sum of all the ward councillors. We have some standing committees and we have the chairman of this council known as mayor. सो अभी तक ये इतना ही रखिए, हम बाद में वापस आएंगे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पे. सो ऑल द मेंबर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी विल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय दीज वार्ड्स. जो भी पॉपुलेशन होगी इन दीज वार्ड्स में वो यहाँ एलिजिबल होंगे वोटिंग के लिए फॉर द इलेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स एट लोकल लेवल्स. व्हाट इज़ द क्राइटेरिया टू गेट इलेक्टेड इन दिस लोकल लेवल इलेक्शंस? मैंने आपको शायद से बताया था. पहले तो स्टेट के जो भी प्रोविजंस है वो अप्लाई होंगे एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कितना दिया हुआ है, मोर देन और इक्वल टू 21 ईयर्स ऑफ एज. सो ये वर्ड्स मैंने बता दिया आपको. देन देयर इज अ समथिंग नोन एज वार्ड कमिटी. इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोर देन वन वार्ड एंड दीज आर मैंडेटरी. एंड दीज आर मैंडेटरी. ये आपको बनानी ही पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट को ये बनानी ही पड़ेगी. ड्यूरेशन, यहाँ दूसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट लिख लेना. ड्यूरेशन, ऑल दिस पॉइंट्स आर सिनोनिमस विद द पंचायत प्रोविजन, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ. ड्यूरेशन 5 years की टर्म होगी. अगर पहले डिजॉल्व हो गई तो 6 month, विद इन 6 months वी हैव टू कंडक्ट द इलेक्शन एंड द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड म्यूनसिपालिटी विल बी ओनली रूलिंग विद द रिमाइंडर ऑफ द टर्म. अगर 2 साल में अगर डिजॉल्व हो रही है म्यूनसिपालिटीज़ तो जो अगली नई म्यूनसिपालिटी गठित होगी वो बस 3 साल के लिए होगी. अंडरस्टूड? सो एक ये प्रोविज़न हो गया. तो मैंने कितना बताया था, ये 3 जगह है रिमाइंडर ऑफ द टर्म जो करते हैं. एक राज्यसभा में, एक म्यूनसिपालिटीज़ में और तीसरी पंचायत में. तो 2 लोकल गवर्नमेंट पे हो गई, एक राज्यसभा में हो गई आपकी. ड्यूरेशन बता दी मैंने कितने से कितनी होगी. देन इसके इलेक्शंस मैंने बता दिए कि आप 21 ईयर से अबव होने चाहिए, इक्वल टू or more than 21 years of age. Then reservation, the same as the panchayats. Reservation to SCs and STs in proportion to their population. आप वुमेन्स को दो, कितना दोगे, मोर देन और इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल सीट्स. Now, if suppose a district contains the rural as well as urban areas. So in the urban areas we have the presence of municipalities. In the rural areas we have the presence of panchayats. But these two body, how will they coordinate with each other and come up with a single plan in the front desk of the state government? State government क्या बोलेगी at the end of the day, भाई मुझे एक प्लान सबमिट करो, आप ये फालतू के 2 प्लान मत लाओ. मेरे भी बहुत सारे प्री ऑक्यूपेशंस हैं. सो फॉर डैट वी हैव डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अथॉरिटी. बट इफ इट इज़ अ म्यूनिसिपल एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया, द बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली, लाइक मुंबई, लाइक कोलकाता, तब क्या करेंगे, तो
म्यूनिसिपैलिटी, सॉरी बार बार म्यूनिसिपैलिटी निकल रहा है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग अथॉरिटी। सो दीज आर, ये सिनोनिमस नहीं है, जहाँ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होगी वो वहाँ ये बनाएंगे, जहाँ जो नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट्स होंगे वहाँ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अथॉरिटी बनाएंगे। तो इनमें सेलेक्ट होंगे अब मेंबर्स, कैसे सेलेक्ट होंगे भाई, जितना पंचायत की पॉपुलेशन है उसी प्रपोर्शन के हिसाब से इस डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अथॉरिटी में डाल दी जाएंगे। जितना म्यूनिसिपैलिटीज़ की पॉपुलेशन है उतने ही हिसाब से इसमें भर दिए जाएंगे मेंबर्स। इज दिस अ प्योरली इलेक्टिव बॉडी? नहीं, 4/5 ऑफ द मेंबर्स, एक बार टर्म देख लेना, 450 है, यानी 4/5 ऑफ द मेंबर्स कहाँ से आएंगे? विल बी चोजन फ्रॉम द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पंचायत एज वेल एज म्यूनिसिपैलिटीज। पंचायत का कौन सा? ओनली द डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद से। सो पंचायत की हायरार्की में सबसे ऊपर वाली पंचायत को लेंगे हम, और म्यूनिसिपैलिटीज तो 3 काइंड्स है, तो एक ही है हमारे पास। So 4/5 members will be elected from the elected representatives of the Jila Parishad as well as the municipality. In Metropolitan Planning Authority यहाँ थोड़ी सी अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, एक बार बस देख लेना, नंबर्स देख लेना, अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है बट आप एक बार देख लेना। So now jump straight to the structure. द एस्पेक्ट ऑफ वार्ड कमिटीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, क्योंकि प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बन सकती है ऐसी कि वार्ड कमिटीज़ आर मैंडेटरी टू बी फॉर्म्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो हमको लगेगा नहीं भाई क्यों मैंडेटरी होगी, वार्ड कमिटीज़ आर मैंडेटरी। स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, एंड द फर्स्ट थिंग वी विल कवर इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज म्यूनिसिपल कोऑपरेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्जर एरियाज। व्हाट इज़ अ लार्जर एरिया? हैजंट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। स्ट्रक्चर में देखिए मैंने आपको बता दिया है, वी हैव अ लेजिस्लेटिव और डेलिब्रेटिव बॉडी, वी हैव अ एग्जीक्यूटिव विंग हेडेड बाय एन IAS ऑफिसर, वी हैव अ काउंसिल which constitutes of sum of all ward councillors, we have some committees, standing committees, and we have the chairman of this council known as mayor. The election of mayor can be direct or indirect, on whose discretion? On state governments. Everything is in the hands of state government only. रिजर्वेशन के मामले में अगर वी हैव टू प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन इन चेयरमैनशिप, जो चेयरपर्सन होंगे उसमें अगर हमको प्रोवाइड करनी है रिजर्वेशन तो स्टेट गवर्नमेंट्स, हमको OBC की भी प्रोवाइड करनी है तो स्टेट गवर्नमेंट्स। सो एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नाउ इसी के साइड में हम बना लेते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। इसमें भी थोड़ी सी वही चीज़ है, बस इसके हेड को क्या बोल जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल। Some of the differences between these two bodies is municipal corporation can or is having direct contact with the state government, but ये जो चीज़ है म्यूनिसिपल काउंसिल, इसको डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन अफेयर्स होता है स्टेट गवर्नमेंट का, उसके थ्रू कम्युनिकेट करना पड़ता है विद द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। द सेकेंड डिफरेंस इज दिस मेयर हैज़ द लेजिस्लेटिव फंक्शन बट ही डजेंट हैव एग्जीक्यूटिव फंक्शंस, whereas the president of council has some executive powers also. So these are the two differences between these two. And the third one is the नगर पंचायत। उसमें हमको इतनी ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वाइट इररेलेवेंट है, ज़्यादा नहीं जाननी है। अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार लक्ष्मीकांत से वो पढ़ लेना। अपार्ट फ्रॉम दीज थ्री यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस एंड सी, अगर आप घूमे हो इंडिया तो आपने देखा होगा देर आर सम अदर बॉडीज ऑल्सो विच आर एडमिनिस्ट्रेटिंग अ स्मॉल एरिया, लाइक समवन कॉल एज नोटिफाइड एरिया कमिटीज, पोर्ट ट्रस्ट, कैंट एरियाज, द एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ द PSUs। सो कुछ ऐसी अलग भी अथॉरिटीज़ हैं। सो दिस नोटिफाइड एरिया कमिटी इट इज़ नॉन स्टैट्यूटरी,
अगर आप इतना सा याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगर कोई PSU अपने एम्प्लॉयज़ और उनके घर वालों के रहने के लिए कुछ बना रही है तो उस बॉडी में इलेक्शन होनी चाहिए, नॉमिनेशन होनी चाहिए। इट इज़ द होल सोल अथॉरिटी ऑफ PSU। ऑफकोर्सली नॉमिनेशंस तो फुल्ली नॉमिनेटेड है, एक्ट के ज़रिए बना देते हैं। कैंट एरिया एक्ट के ज़रिए, पोर्ट ट्रस्ट एक्ट। भाई कहीं भी हमें पोर्ट्स मिलते हैं तो उस पोस्ट में जो पोर्ट में जो फंक्शंस करते हैं एम्प्लॉयज़, उनकी फैमिली कहाँ रहेगी? तो पोर्ट अथॉरिटी जो होती है वही बिल्डिंग्स खड़ी करती है, कैंप एरिया खड़ा कर देती है। जैसे मुंबई पोर्ट ट्रस्ट है ना, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट है, तो ऐसे ही ये एक्ट से बनाया गया है। नोटिफाइड एरिया कमेटी इज अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये थे कुछ चीज़ें हमारे म्यूनसिपालिटीज़ और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। Municipalities are covered under 3 ministries. The first is Ministry of Urban Affairs, Ministry of Defense और एक है Ministry of House। ठीक है, सो होम मिनिस्ट्री के अंडर भी है। क्यों? क्योंकि यूटीज़ में भी तो हो सकती है, तो होम मिनिस्ट्री आ गई। कैंट एरिया भी हमने कुछ पढ़े तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी इसमें आ जाएगी, एंड अर्बन एरियाज़ के लिए तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स तो है ही। सो दीज 3 मिनिस्ट्रीज विल रेगुलेट द प्रोविजंस ऑफ द म्यूनसिपालिटीज़। तो छोटा सा चैप्टर था। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर येट अनदर छोटा चैप्टर ऑफ UT, देन Schedule 5 एंड Schedule 6, एंड द मेजर पोर्शन 95% ऑफ द पॉलिटी विल गेट कंप्लीटेड। उसके बाद हमारा बस बच जाता है जो बहुत ही रट्टाफिकेशन चीज़ें हैं, द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ एज वेल एज द नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो होप सो, देखते हैं उसमें भी टाइम मिलेगा तो मैं करवा दूंगा, अगर नहीं टाइम मिलेगा तो आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना। इफ़ योर concepts are getting cleared, please like this video, share it with your friends and subscribe to our YouTube channel. तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।